हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्चना चौहान एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 8 ऑफ आर डी शर्मा क्लास 6 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा एंड वी विल डिस्कस हियर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आर 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर एंड सीसीई चैप्टर टेस्ट। ठीक है, ये सब मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। सो बी रेडी with your study material, pen, pencil, book, notebook, whatever you have. Okay, so let's start now. Question number 1, 5 more than twice a number x is written as. ठीक है, 5 more than twice a number. Twice a number मतलब आपके पास जो नंबर x है, वेरिएबल x है, इसका आपने ट्वाइस करना है। ठीक, एंड उसमें 5 ऐड कर देना है। सो इट वुड बी ट्वाइस ऑफ x प्लस 5। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वोशिएंट ऑफ x बाय 2 इज एडेड टू 5 इज रिटन एज। क्या कहा गया है? द क्वोशिएंट ऑफ x बाय 2, x को x बाय 2 इज एडेड टू 5। ठीक है, कि अगर हम क्वोशिएंट ऑफ x, question number 2, the quotient of x by 2 is added to 5. The quotient of x by 3 is multiplied by y. तो ये बन जाएगा एक्स वाई अपॉन 3, है ना। तो जो इसका ऑप्शन है दैट वुड बी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। ठीक है, now 9 taken away from the sum of x and y. x प्लस y है ना, सम हो गया और इसमें से हमने 9 क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये बनेगा x प्लस वाई माइनस 9। तो जो फोर्थ है उसका ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द क्वोशिएंट ऑफ x एंड y, द क्वोशिएंट ऑफ x बाय y एडिड टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा, है ना। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू 2ab स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर के साथ में ए जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा एंड बी क्यूब के साथ में बी स्क्वायर चले जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 2a रेज टू पावर 3 b रेज टू पावर 5। क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती है। यहाँ पर पावर 1 है तो 2 + 1 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया। सो ऑप्शन चेक कर लो, 2a³ b5 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, 6 का बी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 4a² b³ इंटू 3ab स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5a³ b। तो पहले इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक साथ रख लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 5 एंड जो a स्क्वायर है एंड a³ एक साथ चले जाएगा एंड यहाँ से मिलेगा आपको b³ b² एंड b। ठीक, नाउ 4 3 जा 12 एंड 12 5 टाइम्स इट वुड बी 60। ठीक है, 60 a की पावर यहाँ से देखो 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 हुआ प्लस 2 6 हो गया एंड b 3 + 2 5 + 1 6। तो 60 a6 b6। ठीक है, सो चेक करो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now question number 8, if 2x square y and 3xy square denote the length and breadth of the rectangle, then area is length into breadth. So 2x square y multiply by 3xy square. So 2 3 times 6 x³ y³, right? So check the correct option. It is C option will be correct one for question number 8. Now question number 9, in a room there are x square rows of chairs and each row contains 2x square chairs. The total number of chairs in the room. So just simply we will multiply these two terms. X square will multiply with
2x square, so we will get 2x raised to power 4, right? So for question number 9, B option is the correct option. Now last question of objective type questions is a cube multiplied by 2a square b multiplied by 3ab raised to power 5 is equivalent to. So just multiply with numerical coefficients, that is 2 multiplied by 3 and a cube, a square, a and b multiplied by b raised to power 5. So you will get 6, a raised to power 6 and b raised to power 6. So is there any option? Yes, 10th 6 a raised to power 6 and b raised to power 6. Yes, option C is the correct option. Now we will discuss CCE chapter test, and this is section A. So let's start. Question number 1, 9 less than our literal x is written as. So simple, its option is very easy. It's x minus 9 only. So B option is the correct one. Now second, the product of x and y is decreased by 4 is written as. So first of all you need to find the product of x and y. It would be xy और आपने क्या करना है, decrease करना है 4 को, है ना. So it would be xy minus 4. So you can see C option is the correct one. Now the initial count of bacteria is x and it becomes y times every day. The total count of bacteria after 1 week is. तो देखो initial count कितना है, x है, और every day it becomes y times of x and the total count of bacteria after 1 week. एक हफ्ते बाद हमने बताना है कि total count कितना होगा बैक्टीरिया का. ओके, सो it would be power of y, it is 7. After 7 days की वो हमसे बात कर रहा है ना. तो इट्स ऑप्शन इज 3 सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट. एक्स हमारा काउंट था बैक्टीरिया का, ये y टाइम्स इसका हो गया, एंड जो टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया है आफ्टर 1 वीक, सो इट वुड बी y raised to power 7. Now we will discuss CCE chapter test, and this is section A. So let's start. Question number 1, 9 less than our literal x is written as. So simple, its option is very easy. It's x minus 9 only. So B option is the correct one. Now second, the product of x and y is decreased by 4 is written as. So first of all you need to find the product of x and y. It would be xy और आपने क्या करना है, decrease करना है 4 को, है ना. So it would be xy minus 4. So you can see C option is the correct one. Question number 3, the initial count of bacteria is x and it becomes y times every day. The total count of bacteria after 1 week is, so it is xy raised to power 7. Now next is the product of A and B is added to their sum is written as. Product निकालना है A और B का और इसको हमने ऐड कर देना है उनके सम के, सो दैट इज A प्लस B. सो ऑप्शन A, फोर्थ का ऑप्शन A क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्यूब into 5x cube y square. So just multiply numerical values, it is 10. 2 into 5 10 हो जाएगा. And count the powers of x. तो 2 plus 3 कितना हुआ, 5 and y raised to power 5. So 10x raised to power 5 and y raised to power 5. So 5 का जो C option है that would be correct one. Now 6 is if the length of edges of a cuboid is this and then its volume is, volume हमने पता करना है, so we know that L B H, right. तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 3 जा 6 4 जा 24, राइट. 24 होगा, तो 24 हमारे पास यहाँ है और यहाँ है, एंड बाद की हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ नेक्स्ट वन, question number 7, the sum of A and B is multiplied by
taken away 5 from their sum, taken away 5 from their sum। देखो ध्यान से इसको हमने समझ के करना है। a प्लस बी है ना, सम ऑफ a प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई करना है। ए उनके सम में से अगर हम 5 को निकाल दें, उसमें से बाहर कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उनका जो प्रोडक्ट है एक तरीके से वो क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 7 का ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज y टाइम्स इट्स ब्रेथ x। ठीक है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो देखो ब्रेथ यहाँ पर x है, लेंथ क्या होगा, y टाइम है किसका, ब्रेथ का। ओके, नाउ एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, so it would be x square y. So question number 8 option C is the correct one. Now question number 9, इन सब का multiply करना है। So first of all just multiply numerical value. So 2 3 जा 6 4 जा 24 and count the power of x. So it is x raised to power 2 plus 1 3, 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3, 3 plus 3 6, and same count for y 2 and plus y 7. So 24 x raised to power 6 and y raised to power 7. So question number 9 B option is the correct one. Question number 10, thrice x added to y squared is written as, thrice x है ना, thrice x हमने करना है तो it is thrice of x and added to y square, तो 3x plus y square हो जाएगा। सो 10th का D ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। नाउ कम टू सेक्शन B। इन सेक्शन B क्वेश्चन नंबर 11, राइट डाउन 7xy square into 3x square y into 5 by 4 in exponential form। तो सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल पार्ट फर्स्ट। ओके, 5 3 जा 15, 7 जा 105 हो जाएगा। नाउ काउंट द x पावर, तो 1 plus 2 3, x raised to power 3 and y raised to power 2 plus 1 3 plus 4 7, तो 105x cube y 7 4, question number 11। now question number 12, the length and breadth of a room are 3x square y cube, है ना, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, करेक्ट। फाइंड इट्स पैरीमीटर एंड एरिया, तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा, इट्स अ रेक्टेंगल एक्चुअली। सो पैरीमीटर हमने फाइंड करना है। सो पैरीमीटर ऑफ द रूम विल बी ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 6x क्यूब वाई स्क्वायर। तो अब इसमें से कुछ कॉमन ही हम कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम यहाँ पर भी लीव कर सकते हैं। ठीक है, एंड एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने कर देना है। तो इट वुड बी 3 6 टाइम 18 एंड x रेज टू पावर 5 एंड y रेज टू पावर 5, ये इसका एरिया हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म में हमने देना है, तो ये तो बहुत ही आसान एकदम होता है क्वेश्चन। चलिए करते हैं। देखो प्रोडक्ट फॉर्म से मतलब क्या है कि आपने इनको कुछ ऐसे लिखना है, जैसे फर्स्ट है एक्स क्यूब वाई रेज टू पावर 4 है एक्चुअली। ठीक है, तो x को हमने 3 टाइम्स लिख देना है और y को हमने जितना भी इसका पावर है उतने टाइम्स लिख देना है। ठीक है, सेम फॉर सेकेंड 6x रेज टू पावर 7y, तो 6 को आप 6 से ही लिखिएगा एंड x इंटू x को आपने 7 टाइम्स लिखना है, राइट। कितना टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 मोर टाइम एंड y, कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे। नाउ थर्ड वन इज 9xy स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 9 ऐसे ही रहेगा, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड, राइट। नाउ फोर्थ वन इज 10a क्यूब b क्यूब c क्यूब, सो tan a 3 टाइम्स लिखा जाएगा एंड b इज ऑल्सो 3 टाइम एंड c भी हमने 3 टाइम लिख देना है। तो ये कुछ इस तरीके से इनकी प्रोडक्ट फॉर्म बनेगी। क्वेश्चन नंबर 14, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2x स्क्वायर टाइम्स इट्स ब्रेथ एंड द हाइट इज
3/2xy times of length, find the volume of the cuboid if its breadth is 6y square. तो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं. सो गिवन टू अस ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड कितना है क्वेश्चन में, इट इज 6y स्क्वायर, राइट. एंड लेंथ ऑफ द cuboid, it is equivalent to 2x square मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ठीक है, इतना है. एंड ब्रेथ हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6y स्क्वायर. मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, 12x स्क्वायर y स्क्वायर. ठीक है, इसके अलावा हमने हाइट फाइंड करनी है. सो हाइट वुड बी height of the cuboid. ये उसने कहा है कि 3/2xy ऑफ लेंथ. ठीक, तो 3/2xy लेंथ अभी अभी फाइंड किया है. इट इज़ 12x स्क्वायर y स्क्वायर. ऑन मल्टीप्लाइंग 2 6 टाइम 12 एंड 3 6 टाइम 18 x क्यूब y क्यूब विल बी द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड. ठीक है, अब हमें लेंथ पता चल गया है, ब्रेथ पता चल गया है एंड हाइट हम लोगों ने निकाल ली है. सो वी कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू LBH. नाउ पुट द वैल्यूज. L is 12x square y square and breadth is 6y square and 18x cube y cube. Now multiply. न्यूमेरिकल वैल्यू एक साथ चले जाएंगे तो 12 इंटू 6 इंटू 18 एंड एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स क्यूब यहाँ है तो x रेज टू पावर 5 एंड y रेज टू पावर 2 + 2 4 + 3 7. ठीक है, इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दैन यू विल गेट 1296 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 7. The answer given in the textbook is incorrect. So I have corrected here. ठीक है, बुक में 105x क्यूब y रेज टू पावर 7 दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है. Okay, now come to next question. Question number 15. Write this in the exponential form. So first of all, just find out numerical value. It is 3 multiplied by 2. And a how many times is there? 2 times. So a raised to power 2, b raised to power 3 and c raised to power 4. Now multiply 6 a square b cube c 4. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 का ये आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15, राइट दिस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज़ 3 multiplied by 2 6 and a raised to power 2, b raised to power 3 and c raised to power 4 will be the answer. Now come to question number 16. Question number 16 is, in a large hall there are 4x square rows of benches. If each row has this 5x square y cube benches and each bench can accommodate x y square persons, so determine the total number of persons if it is full up to its capacity. ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ रोज़ इन अ हॉल दिए हुए हैं, नंबर ऑफ बेंचेस आपको दिए हुए हैं हर एक रो में और हर एक बेंच पर कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठ सकते हैं ये भी दिया हुआ है. हमने यहाँ बताना है कि उस हॉल में फुल कैपेसिटी में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स आ सकते हैं. ठीक, सो नंबर ऑफ रोज़ इन अ हॉल in the whole it is equivalent to 4x square, right? Number of benches in each row, number of benches in each row ये दिया हुआ है हमें 5x square y cube, करेक्ट.
Now the number of persons that can accommodate in a bench, number of persons that can accommodate in a bench, it is equivalent to xy square, right? Now total number of benches in the hall क्या हो जाएंगी? Total number of benches in the hall, it is equivalent to number of rows in the hall, that are 4x square, and number of benches in rows, that is 5x square y cube. On multiplication it would be 20 x raised to power 5 4 and y raised to power 3. Okay, so we can find now number of persons in the hall if it is full up to its capacity. It would be number of person that can accommodate in a bench, that is xy square, and total number of benches in the whole, that is 20 x raised to power 5 y, 4 y raised to power 3. So on multiplying we will get x raised to power 5 and y raised to power 5. 20 x raised to power 5 and y raised to power 5. Now question number 17. The cost of painting a rectangular metal sheet is a square of its area. If the length and breadth of the rectangle are 2xy and 3x square y, find the cost. Given that area of a rectangle is the product of its length and breadth. So here length of the rectangular metal sheet, length of rectangular metal sheet, it is equivalent to 2xy, and breadth of the rectangular metal sheet is equivalent to 3x square y. Equivalent to length into breadth, so it would be 2xy multiply by 3x square y. ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 6x क्यूब y स्क्वायर. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द मेटल शीट वो कितना होगा? कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द metal sheet, it is area of the rectangle is the product of its length and breadth. Okay, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब y स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि क्या है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट इज स्क्वायर ऑफ इट्स एरिया. इसके एरिया का हमने स्क्वायर कर देना है, तो हमारे पास एरिया कितना है? 6x क्यूब वाई स्क्वायर. सो इसका हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया. स्क्वायर करने पर 6 का स्क्वायर 36 एंड x क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 6 एंड y स्क्वायर इट्स y रेज टू पावर 4. तो आंसर हो जाएगा 36 x रेज टू पावर 6 एंड बाय 4. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. Ravish covers 3x square y centimeters in one step. What is the distance moved by him in 2xy square minutes if he takes xy steps in 1 minute? So distance हमारे पास है कि एक स्टेप में वो कितना कवर कर रहा है. नंबर ऑफ स्टेप्स इन 1 मिनट वो भी हमें पता है, टाइम पता है. सो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जितना भी टाइम है उसमें वो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा है या चल रहा है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 स्टेप, it is equivalent to 3x square y and it is in centimeter. Okay, now the number of steps taken in 1 minute,
taken in 1 minute equivalent to xy. So time will be 3x square, टाइम हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर y minutes. ठीक है, so we can find now the number of steps taken in 2xy square minutes equivalent to number of steps taken in 1 minute multiply by time. So क्या हो जाएगा, xy multiply by 2xy square. ठीक है, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर वाई रेज टू पावर क्यूब, 2x स्क्वायर वाई रेज टू पावर 3. नाउ डिस्टेंस मूव्ड इन 2xy स्क्वायर मिनट्स. ठीक है, इतने टाइम में वो कितने स्टेप्स चलेगा. सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई क्यूब. जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इन 2xy स्क्वायर मिनट्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 स्टेप, दैट इज़ 3x स्क्वायर वाई. सो मल्टीप्लिकेशन करने पर 6x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4 सेंटीमीटर. Question number 19. ROC spends rupees X daily and saves rupees Y per week. How much money she saves in XY square weeks? So money कितना स्पेंड करती है, मनी स्पेंट बाय ROC डेली गिवन है रुपीज़ X. एंड मनी सेव कितना करती है, मनी सेव्ड पर वीक. ठीक है, ये है हमारे पास रुपीज़ वाई. ठीक है, नंबर ऑफ वीक्स कितने बोला है उसने, नंबर ऑफ वीक्स इट इज़ इक्विवेलेंट टू XY स्क्वायर. ठीक, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि मनी स्पेंट पर वीक कितना है. ठीक है, सो मनी स्पेंट पर वीक इट इज़ इक्विवेलेंट टू 7x. ठीक है, डेली कितना खर्च कर रही है, x रुपीज़. ठीक है, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7. दैट्स वाई मनी स्पेंट पर वीक विल बी 7x, रुपीज़ 7x आप लिख सकते हैं इसको. ठीक है, सो टोटल मनी सेव्ड पर वीक कितना हो जाएगा, मनी सेव्ड पर वीक इट इज़ इक्विवेलेंट टू y माइनस 7x. ठीक है, क्योंकि मनी सेव कितना कर रही है, y कर रही है, और खर्च कितना हो जा रहा है, 7x हो जा रहा है, तो इसलिए y माइनस 7x. सो टोटल मनी सेव्ड इन XY स्क्वायर वीक्स. ठीक है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू XY स्क्वायर, नंबर ऑफ वीक्स हो गए, और पर वीक में कितना मनी उसने सेव किया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप. तो इट वुड बी रुपीज़ XY स्क्वायर y माइनस 7x. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20. 1 wall pan cost rupees X and 1 fountain pen cost rupees Y. Find the cost of Y square wall pans and X square fountain pen. Okay, so cost of 1 wall pan, ठीक है, कितना है, रुपीज़ X. एक वॉल पैन की जो कॉस्ट है वो X रुपीज़ है. सो कॉस्ट ऑफ Y स्क्वायर वॉल पेन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय Y स्क्वायर, सो रुपीज़ XY स्क्वायर. ठीक है, सो सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 फाउंटेन पेन
it is equivalent to rupees y. So cost of x square fountain pens इक्वल्स टू रुपीज़ वाई मल्टीप्लाई कर जाएगा एक्स स्क्वायर से, तो ये बनेगा वाई एक्स स्क्वायर. ठीक है. सो टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? टोटल कॉस्ट वुड बी कॉस्ट ऑफ वाई स्क्वायर बॉल पेन्स प्लस कॉस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर फाउंटेन पेन, दैट वुड बी रुपीज़ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर. राइट. नाउ fill in the blanks. First is x plus x up to y times. ठीक है. कितना हो जाएगा? y टाइम्स अगर है तो डेफिनेटली इट इज़ एक्स वाई. नाउ 22 अ चेयर कॉस्ट रुपीज़ एक्स, द कॉस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई चेयर्स इज़. तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई को, तो ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 3 वाई. इतने रुपए हमारे बन जाएंगे. ठीक है. रुपीज़ एक्स क्यूब वाई. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर बनेगा ये a रेज़ टू पावर 2, न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रंट पर आ जाएगी, यहाँ से 3 यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, एंड b रेज़ टू पावर 2 एंड c रेज़ टू पावर 2. सो इट इज़ 6a स्क्वायर. ओके, b की पावर 3 होगा, b रेज़ टू पावर 3, b raised to power 3 and c square. Now question number 24. A man spends rupees x per week. The total money spent by him in xy square weeks. सिंपल है. एक वीक में आप जो मनी स्पेंड करता है वो रुपीज़ एक्स है, तो एक्स वाई स्क्वायर वीक में बताने की टोटल मनी वो कितना खर्च कर पाएगा. तो 24 में सिंपली यू विल मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई स्क्वायर, तो बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. इतने रुपए वो एक्स वाई स्क्वायर वीक्स में खर्च कर देगा. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन इज 25. इट इज़ एक्स क्यूब 4x वाई स्क्वायर 3/2 एक्स वाई क्यूब. ठीक है. तो 2 से कितने टाइम्स कट जाएगा? ये 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स. नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू से 6 हो जाएगा, एंड x की जो पावर है 3 + 1 4 + 1 5 एंड y रेज़ टू पावर 5. ठीक है. 6x रेज़ टू पावर 5, y रेज़ टू पावर 5. सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा. इसमें एक जो CCE टेस्ट था और हमारे पास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे. सो थैंक यू सो मच. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय